This is Dr. Omar Farooq, the instructor on engineering materials. We have done a couple of lectures before the start of the lockdown, and due to the COVID-19 situation, we must learn and adapt to the new ways of teaching and learning, and this is one of them. So what we'll do is I will record some lectures and upload them, and then you can view it, understand it, and then if you have any questions, we'll arrange a Zoom meeting, and on the WhatsApp group you may ask questions, and then I will try to answer them. So this is the way we are going to go through this course from now on. So in first couple of lectures, you have learned about the introduction of this of the engineering materials course. We will go through the initial lectures briefly, and then we'll move on to the new stuff which we still have to study. So from the start, like you have seen here, I talked about the course learning outcomes of this particular course, and we have also discussed about the books which I'm going to follow mostly in this course. So मैं से एक book that is the Material Science and Engineering and Introduction by Clister. So I recommend you guys that you should follow and study this book, because we will be following mostly this book in this particular course. Moving on, and this is the standard grading policy. We have discussed it before, and we have discussed already what are materials. So just to recap and review, any tangible thing is a material. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप टच कर सकें, tangible, any tangible object is a material. So जो भी चीज़ आप आमतौर पर देखते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, chairs, human beings, anything you can touch and feel, that is a material. It's made of some kind of material. Okay. So we can broadly classify the materials into various types. One of them is metals and alloys. Metals and alloys आमतौर पर आप जैसे जानते हैं, मेटल जिस तरह कॉपर, गोल्ड, जैसे आप एग्जाम्पल बताएंगे. So these are all metals. The metals usually tend to be ductile and stronger in general, and usually have lustrous color and opaque, and usually conductors of electricity. So these are the usual properties of the metals and alloys. So metals, strictly speaking, metals are elemental materials. These are elements like copper, gold, iron. लेकिन जो alloys हैं, alloys are the you can solid solutions or mixtures of two or more materials, out of which predominant part is metallic. For example, steel जो है, steel is an alloy of iron and carbon. Iron जो है, that is a metal, and carbon is non-metal, but the combination of them gives the steel, and the steel is an alloy. इसका कॉपर जो है, कॉपर इज़ अ मेटल, लेकिन ब्रास जो है, द ब्रास पीतल भी कहते हैं, दैट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड जिंक का अलॉय जो है, दैट इज़ अ complete solid solution to some percentage, and then they have intermetallics and so on. So intermetallic are the phases which might form for the copper zinc system. The thing is, the brasses are, जिसे हम usually पीतल भी कहते हैं, they are alloys because they are a mixture of they are solid solutions of two or more materials, out of which most of them are metals. So mostly जो चीज़ें metal based हैं या metallic हैं, उससे हम metals and alloys कहते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी जगह पे metals and alloys को interchangeably भी use किया जाता है. Maybe someone is calling the steel metal, even though by definition it is not a metal, it is an alloy. But that's how usually people refer to the metallic things. So you must know कि जब भी कोई मतलब कहीं पे भी अगर लिखा हो या कोई एक्सप्रेशन यूज़ करे मेटल या alloys किसी चीज़ के लिए, then you must understand that he may be referring alloys as metals. For example, जैसे स्टील को भी लोग मेटल कहते हैं, by definition it's an alloy, लेकिन आप उससे मेटल भी यूजुअली लोग कहते हैं, तो आप कह सकते हैं. ठीक है. जिस तरह पीतल है, ब्रास, दैट इज़ आल्सो एन अलॉय, लोग कॉमनली इसे मेटल भी कहते हैं. ठीक है. सो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कि मेटल्स एंड अलॉयज में फ़र्क है. मेटल्स आर मेटालिक मटेरियल्स या प्योर मटेरियल्स. अलॉयज आर कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आउट ऑफ विच द प्रिडोमिनेंट पार्ट इज़ मेटालिक. तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटालिक होती हैं अलॉयज़ की. तो हम इसे कॉमनली मेटल भी कहते हैं. बहुत सारी जगह पे लोग इसके लिए मेटल का वर्ड भी यूज़ करते हैं. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट classification, that is ceramics. So ceramics are inorganic non-metallic solids. Most things which you see around are ceramics. For example, soil, sand, जो मिट्टी है या जैसे जो बिल्डिंग मटेरियल है, जितने कंक्रीट है, जो आमतौर पे जो घर बिल्डिंग मटेरियल से बनते हैं, ईंटें वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं सिरेमिक है. सिरेमिक्स आपसे समझ लें जो मिट्टी की तरह की जो चीज़ें उन्हें हम सिरेमिक्स कहते हैं. दैट द ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासीफाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स. तो सिरेमिक्स इन जनरल सॉइल बेस्ड मटेरियल्स को हम इन जनरल सिरेमिक्स कहते हैं. ठीक है. तो इसमें हम कह सकते हैं सॉइल है, सैंड है, चाइना क्ले है, और इस तरह के जितने भी अर्थ क्रस्ट पे जितने मोस्टली जो मटेरियल पाए जाते हैं, दोज आर यूजुअली सिरेमिक्स. ठीक है. तो इसमें ट्रेडिशनल हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रेडिशनल सिरेमिक्स एंड एडवांस सिरेमिक्स. ट्रेडिशनल सिरेमिक्स मैंने कहा सिलिकेट्स हैं, सिलिका सैंड है या उसके एलुमिनो सिलिकेट्स हैं, क्ले, सीमेंट्स एंड ग्लासेस. जो आमतौर पे ग्लासेस, विंडो ग्लासेस जो हैं ये आमतौर पे सिरेमिक बेस मटेरियल के बने होते हैं. आमतौर पे ये सोडा, कैल्शियम, एलुमिनेट्स या एलुमिनो सिलिकेट्स होते हैं. ठीक है. तो क्योंकि लो मेल्टिंग है तो इसलिए ग्लासेस जो हैं इनिशियली प्रोड्यूस होते हैं सोडा सिलिका बेस्ड ग्लासेस, तो उनको ज़रा लो मेल्टिंग थे तो इजीली प्रोड्यूस हो सकते थे. नाउ देयर आर एडवांस टाइप ऑफ ग्लासेस अवेलेबल एज वेल. Okay. So now if we talk about the advanced ceramics, the thing is that the society is progressing. We need more advanced type of materials which can meet the needs of the future and the present with the cutting edge technology, for the cutting edge technology. In this regard, we have mankind has developed over the time a lot of new kind of ceramics. Few of them are listed here. This is like hydroxyapatite. This may be used as a potential replacement for the bone because it has a quite similar structure to the bones. इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं टाइटेनियम नाइट्राइड है, TiN. Ti is titanium and N is for nitrogen. So as a compound it makes titanium nitride and there is a tungsten carbide. So here you can see these are the drill bits and other gears and other mechanical parts which are coated with the titanium nitride. This is not as a whole made of titanium nitride. No, इसमें just coating इसके ऊपर जो है वो titanium nitride की है. ठीक है. बाकी जो itself drill bits हैं ये स्टील बेस्ड मटेरियल के बने, आमतौर स्टील्स के बने होते हैं. ठीक है. कोटिंग इसके ऊपर क्यों सिरेमिक्स करते हैं? क्योंकि यूजुअली सिरेमिक्स आर हार्ड मटेरियल जो हैं वो कटिंग ऑपरेशन को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी वियर एंड टियर भी कम होती है. ठीक है. तो और इसका नेचुरली कलर गोल्डन है, इसलिए इसे एस्थेटिक्स या ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रैच प्रूफ वॉचेस जो हैं उसमें जो गोल्डन कलर है वो टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग से आता है. टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग का कलर गोल्डन है, इसलिए वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, आमतौर पर डिज़ायरेबल है. स्क्रैच प्रूफ होने की वजह से उसकी शाइन और लस्टर में ओवर द टाइम फ़र्क नहीं आता, इसलिए हम उसे स्क्रैच प्रूफ कोटिंग्स भी कह सकते हैं. स्क्रैच प्रूफ कह सकते हैं मार्केटिंग टर्म में. प्रैक्टिकली या हम कहते टेक्निकली ये स्क्रैच प्रूफ नहीं होता, लेकिन इस पर स्क्रैच या इंडेंटेशन बहुत मुश्किल से आती है. ठीक है. स्क्रैचेस काफ़ी मुश्किल से होते हैं इसमें, इसके ऊपर जो होते हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट कह सकते हैं हम इसे ना. तो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इस वजह से इनकी लाइफ भी जो है किसी वॉचेस की कोटिंग की होती है उसकी लस्ट्रस अपीयरेंस और उसकी लाइफ पे जो है बेहतर होती है. ठीक है. तो ड्रिल बिट्स के ऊपर या यहाँ पे जो कोटिंग की हुई है ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए नहीं है. ये इसलिए है कि क्योंकि टाइटेनियम नाइट्राइड इज़ क्वाइट हार्ड मटेरियल, तो ये फिर इस वजह से ड्रिलिंग एंड कटिंग में हेल्प करता है. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि आमतौर पे हार्ड सरफेसेस जो हैं वो वियर आउट भी कम होती हैं. वियर आउट मीन्स रिमूवल ऑफ a material, physical removal of the material from the surface. कोई भी चीज़ जो है जो ओवर द टाइम फ्रिक्शन की वजह से या
कोई इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से ओवर द टाइम सरफेस से फिजिकली रिमूव होती जाती है, जिसे हम आमतौर पर उर्दू में किसी चीज़ का घिस जाना भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज घिस जाना जिसे कह लें, ये वेयर आउट होना कह लें, ये दिस इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल गेट्स रिमूव ड्यू टू सम रीज़न। उसमें आमतौर पर जो वेयरिंग का फेनोमेना ये फिजिकल होता है, किसी चीज़ के स्लाइड होने की वजह से मटेरियल वेयर आउट हो सकता है। When two surfaces are in relative motion to each other, they tend to slide over each other. So sliding की वजह से जो surface के ऊपर से particles remove होंगे, that is called wear, ठीक है। wear and tear काफ़ी common term है, इसमें यूज़ होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ceramics हैं वो आमतौर पे हार्ड मटेरियल है, इसलिए कटिंग ऑपरेशन बेहतर परफॉर्म हो सकता है जो चीज़ ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी जो कोटिंग है सिरेमिक मटेरियल्स की, या आमतौर पे वियर एंड टियर को भी कम करती है, ठीक है। सो इफ वी ब्रॉडली टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सिरेमिक्स, द प्लस पॉइंट्स ऑफ द सिरेमिक्स, दे आर abundant in earth crust, that's why they are easily available and cost effective. So the cost of concrete per unit volume is much lower than the cost of the steel, which is used as a reinforcement in the concrete. सो दैट्स वाई बिल्डिंग जो है मोस्टली इसमें जो ईंटें या कंक्रीट या सीमेंट जो चीज़ यूज़ होती हैं, ये आमतौर पे इसका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम होती है दैन रादर दैन कि हम एक बिल्डिंग जो है उसे मेटालिक बनाएं। तो मेटालिक अगर बिल्डिंग बनाएंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जो सिरेमिक बेस्ड बिल्डिंग होगी उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि सिरेमिक जो है देयर अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें सिरेमिक्स में आती हैं, ठीक है। आमतौर पे सिरेमिक्स की डेंसिटी है वो भी वो लो होती है व्हेन कंपेयर्ड विद द मेटल्स एंड अलॉयज। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे हम देख लें कि जो स्टील की डेंसिटी है दैट इज़ अराउंड 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे टिपिकल कंक्रीट जो है उसकी डेंसिटी तकरीबन 2.4 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो 2.4 या 2.5 अगर हम रफली से कहें तो दैट इज़ like more than 3 times less than the density of steel. So it means कि for the same volume ceramic का वज़न जो है वो कम होगा, स्टील का ज़्यादा होगा। स्टील है, कॉपर है या ब्रास है जिसे पीतल भी कहते हैं, इसकी आमतौर पर डेंसिटी जो है 8 के करीब होती है, ठीक है। तो वो मटेरियल काफ़ी हैवी होते हैं। सिरेमिक्स उनके कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम है तो ये कम हैवी होते हैं, ठीक है। इसी कंपैरिजन में अगर बताऊं कि जो पानी की डेंसिटी है दैट इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो सिरेमिक्स जो हैं ये तकरीबन 2.4-2.5 टाइम्स हैवियर दैन दी सिरेमिक्स आर 2.4 और 2.5 टाइम्स हैवियर दैन द वाटर, ठीक है। पर सेम वॉल्यूम 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर में जो वाटर का जो वेट होगा तकरीबन 1 kg होगा। सिरेमिक्स के केस में 2.4-2.5 kg होगा, और इसी तरह स्टील के केस में तकरीबन 8 kg होगा। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में जिससे हम एक सीसी भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इंजेक्शन वगैरह के लिए टर्म यूज़ होती है सीसी, दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। सो एक सीसी में वाटर का वज़न जो होगा 1 ग्राम होगा। सिरेमिक्स का वज़न जो कंक्रीट का है वो तकरीबन 2.4-2.5 ग्राम्स होगा। इसी तरह स्टील का जो वेट होगा तकरीबन 8 ग्राम्स होगा, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू द मेटल्स एंड अलॉयज सिरेमिक्स का जो डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। उनके लिए काफ़ी कम होती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यूजुअली जो है ये ब्रिटल होते हैं एंड टिपिकल इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ब्रिटल एज इन जो भी चीज़ इजीली शैटर हो जाए दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। जिस तरह ग्लास का जो ग्लास होता है, कप होता है, उससे अगर ज़मीन पे गिर जाए तो वो शैटर हो जाता है, बिखर जाता है, उसके पीसीज हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर स्टील का ग्लास होगा तो वो उस पर डेंट तो पड़ सकता है लेकिन वो इस तरह पीसीज में टूटेगा नहीं, ठीक है। जो ब्रिटल मटेरियल है वो इस तरह शैटर हो जाते हैं, ऑल ऑफ सडन ब्रेकेज होता है उनमें, वो टूट जाते हैं। सिरेमिक्स बेस्ड मटेरियल जिस तरह चीनी का कप होता है या इस तरह की प्लेट्स होती हैं, ये भी सिरेमिक बेस्ड मटेरियल हैं, ये भी इसी तरह एकदम टूट जाते हैं, ठीक है। मेटालिक मटेरियल्स आमतौर पे मेटल्स एंड अलॉयज जिन्हें कह लें, ये आमतौर पे डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल नहीं होते। तो ब्रिटल मटेरियल जो हैं वो सडन उनमें शॉक जब आता है कोई भी तो वो ब्रेक हो जाते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल हैं वो ऐसा नहीं होते। जो टफ मटेरियल्स हैं वो आमतौर पे इस तरह ब्रेक नहीं होते,
ठीक है। तो सिरेमिक्स यूजुअली डक्टाइल नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। आमतौर पे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो लो होती है। ये लो स्ट्रेंथ मीन्स इन कंपैरिजन टू द मेटल्स एंड अलॉयज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील से पर्टिकुलरली हम कंपैरिजन करें तो जो आमतौर पे सरिया या रीइंफोर्समेंट बार जिसे कहते हैं, स्टील बार कह लें, रीइंफोर्समेंट बार कह लें या सरिया कह लें, उसकी आमतौर पे स्ट्रेंथ जो है वो 200 मेगापास्कल से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे टिपिकल कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो देख लें 17 to 40 है। तो लेट्स से अगर हम इसकी हायर साइड पे भी 40 मेगापास्कल भी लें तो स्टिल इट इज़ वेरी मच लोअर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बार विच इज़ अराउंड 200 मेगापास्कल, ठीक है। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ सिरेमिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी कम होती है, ठीक है। आमतौर पे डक्टाइल मटेरियल्स की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होती है। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनकी आमतौर पे कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। और यूजुअली ब्रिटल मटेरियल्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। यही केस कंक्रीट में भी है। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ये जो रेंज दी हुई है लेट्स से 40 मेगापास्कल है, मे बी जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 4 to 5 मेगापास्कल हो। सो इट मीन्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी निस्बत भी बहुत कम है। इसलिए कंक्रीट वगैरह जो है जब इन्हें कंप्रेसिव लोडिंग में हम आमतौर पे इसे यूज़ करते हैं। जब टेंसाइल लोडिंग की बात है, जिस तरह छत के ऊपर रूफ वगैरह जब कंस्ट्रक्ट हो रही होती है या हम इसे लेंटर डालना भी कहते हैं, उसमें आमतौर पे जो सरिया ऐड किया जाता है एज ए रीइंफोर्समेंट, तो इसमें रीइंफोर्समेंट बार्स जो हैं ये आमतौर पे लोअर साइड पे रखी जाती हैं। एक तो रीइंफोर्समेंट ओवरऑल चाहिए इसलिए क्योंकि इसकी कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो मतलब अपना वज़न बियर कर सके, इसलिए भी स्टील बार्स ऐड किए जाते हैं। और लोअर साइड पे क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लोअर साइड पे टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे होते हैं। जब कोई भी एक बीम या कोई भी आप स्ट्रक्चर देखें तो जब वो अपने वज़न के ऊपर नीचे की तरफ को बेंड होगा तो लोअर साइड जो है उस पर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होंगे और उसी लेंटर या आप कह लें छत के जो अपर साइड जो है उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है। तो लोअर साइड पे क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे और सिरेमिक्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इसलिए कंक्रीट में कुछ करते हैं कि लोअर साइड के ऊपर आयरन बार्स जो हैं वो ऐड किए जाएँ, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली सपोर्ट कर सकें जो भी छत या रूफ जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, ठीक है, जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए, ओके। सो नेक्स्ट जो है प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स, एक अनदर क्लास ऑफ मटेरियल है। यू आर ऑलरेडी क्वाइट फेमिलियर विद द प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स, जिस तरह पेट बॉटल्स हैं, ये स्विच बोर्ड्स हैं, सारे इस तरह जो स्नूकर या ब्लेड बॉल्स वगैरह हैं, ये सारे इसकी पॉलीमर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। प्लास्टिक के पॉलीमर्स यूजुअली कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है, और आमतौर पे लो डेंसिटी है इनकी डेंसिटी आमतौर पे 1 के करीब होती है, इनका आप कह लें वाटर के करीब होती है। वाटर से कुछ जो है पॉलीमर थोड़े से ज़्यादा डेंस हैं, कुछ पॉलीमर ऐसे भी हैं जो ज़रा कम डेंस भी हैं, लेकिन की वैल्यू मोर और लेस 1 के करीब होती है, ठीक है। यूजुअली ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है। पॉलीथीन कॉमन जो शॉपिंग बैग्स हैं पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन के आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी जो वाइट कलर के पाइप्स होते हैं, हॉलो पाइप जो पाइप्स हैं जिसके अंदर से समटाइम्स इलेक्ट्रिक वायर्स भी गुजारते हैं, तो वो पाइप्स आमतौर पर पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं। इसके अलावा आजकल ग्रीन कलर के पाइप्स भी आ रहे हैं, वो भी जो हैं वो ग्रीन कलर के पाइप्स जो हैं जो गैस के लिए भी यूज़, गैस पाइप के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वाटर पाइप्स के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं, वो भी आमतौर पे पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं, ठीक है। बेक लाइट वगैरह के आमतौर पे स्विचेस बने होते हैं। पेट बॉटल्स जो हैं ये पेट एक मटेरियल है उसकी बनी होती हैं। पेट स्टैंड्स फॉर पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, सो दैट्स द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ विच दीज बॉटल्स आर मेड ऑफ। नायलॉन के आपको पता है, नायलॉन की रॉप्स वगैरह भी इस तरह की कॉमन यूज़ होती हैं जो मार्केट में यूज़ करते हैं। अच्छा, पॉलीमर्स में जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स आमतौर पे जो हैं वो कार्बन बेस्ड मटेरियल के बने होते हैं। ये तो पता होगा हाइड्रोकार्बन है जिस तरह, लेकिन कुछ पॉलीमर्स जो हैं वो सिलिकॉन बेस्ड इस तरह मटेरियल्स के ही बने होते हैं। अब उसमें क्या है, जिस तरह आप कह लें कि हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन को अगर सिलिकॉन से रिप्लेस कर दें तो जो ये भी जो है ये भी न्यू टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैं, ठीक है। सो इस तरह पॉलीमर बनते हैं। इन पॉलीमर को जिस तरह जो वैक्यूम ग्रीजेज हैं, शायद कुछ लोग आप में जानते हो, वैक्यूम सीलिंग के लिए हम ग्रीज इस्तेमाल करते हैं, उसे उसका नाम भी सिलिकॉन ही है। वो आमतौर पे सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। सो मोस्टली जो पॉलीमर्स है वो कार्बन बेस्ड हैं, बट देयर आर अदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच आर लाइक सिलिकॉन बेस्ड और
समटाइम्स एल्यूमिनियम बेस्ड एज वेल। सो ये तीन मेन क्लासेस ऑफ मटेरियल्स। इसी को अगर हम बात करेंगे इन जो भी तीन क्लासेस ऑफ मटेरियल्स हैं, आपस में कोई भी मटेरियल्स को अगर हम आपस में मिक्सचर बनाएं उसका, एंड देन वी यूज इट एज एन एग्रीगेट और मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट। सो वी कैन से इट्स अ मटेरियल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 or more डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, जब इन फेजेस को आपस में मिक्सचर बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो इट विल गिव द एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। अब जो भी हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उससे हम कंपोजिट कहते हैं। जिस तरह वुड है, ठीक है, प्लाईवुड है, या कंक्रीट है, इसमें देखें ग्रेवल या बजरी है और साथ सीमेंट और रेत का जो रिएक्शन हुआ है उससे मैट्रिक्स बना हुआ है। अच्छा, इसमें ये देखें कि जो अगर दो चीज़ों का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीज़ बनती है उससे हम कंपोजिट नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से वाटर प्रोड्यूस होता है तो वाटर को कंपोजिट नहीं कहेंगे। ठीक है, वट इज़ नॉट अ कंपोजिट। लेकिन जिस तरह कंक्रीट का एग्जांपल देखें, इसमें ये बजरी या ग्रेवल है, ठीक है, और दूसरा जो है रेत और सीमेंट को मिला के यहाँ पे आपस में जो रिएक्शन हुआ है इसका ये मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक फेज़ ये रेत और बजरी का जो आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ है वो है, दूसरा फेज़ जो यहाँ पे बजरी है। ये इन जो समझ लें कि बजरी का इस पूरे पार्ट के साथ आपस में रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये अलहदा फेज़ के तौर पे है, ये यहाँ पे अलहदा फेज़ के तौर पे है। तो ओवरऑल ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस हों, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, उसे हम कंपोजिट्स कहते हैं। वुड भी जो है, इसमें आप देखा होगा कभी आपने कोई जिस तरह टहनी वगैरह भी तोड़ते हैं, इफ इट इज स्टिल ग्रीन ब्रांच, then you can see easily it has a lot of fibers in it, then there is a matrix which is holding them together, so that kind of forms a composite system. ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी कंपोजिट है, ये प्लाईवुड कंपोजिट है, इस तरह काफ़ी सारे कंपोजिट एग्जाम्पल हैं। और इस हॉकी स्टिक्स हैं या बैडमिंटन रैकेट्स हैं, ये सारे कंपोजिट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, कंपोजिट्स के इन जनरल जो है हम इसलिए हम यूज़ करते हैं कि दे कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड येट लाइट इन वेट। तो इससे हम टेक्निकली हम ये कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी ज़्यादा होती है और आमतौर पे स्टिफनेस टू वेट रेशियो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा होती है देन द स्टील, बट स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेंथ में भी कंपेरेबल हो, कम भी होती है, कंपेरेबल भी हो सकती है, हम आगे देखेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मीन्स के पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इससे समझे कि अगर हमने कोई लाइट वेट एप्लीकेशन हैं जिससे एरोस्पेस एप्लीकेशन हैं, तो इसमें आमतौर पर एयरप्लेन जो है इसकी जो बॉडी बनी होती है, फ्यूजलाज भी कहते हैं, केबन कह लें, तो आमतौर पे वो कंपोजिट का बना हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो उसकी ज़्यादा है, विच मीन्स कि पर केजी या पर यूनिट डेंसिटी मटीरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो इट इज़ ईजी टू लिफ्ट, इट इज़ ईजी टू फ्लाई इन द एयर, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड आल्सो मोर एफिशिएंट। कम वेट कैरी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो जो एरोस्पेस एप्लीकेशन में चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट होंगी। इसलिए जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है दैट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द एरोस्पेस एप्लीकेशंस। कैसे कैलकुलेट करें स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो? इसमें सिंपली इस तरह कर लेंगे, जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की दैट इज़ डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो जिस मटेरियल की डेंसिटी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टिफनेस जो है दैट्स रिलेटेड टू द देयर इज आल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी व्हिच रिलेट्स हाउ द how much stresses can deform a material within the elastic limit. This means कि जब मटेरियल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना डिफॉर्म हो जाता है अंडर द लोड और अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर एक चीज़ कम स्ट्रेस लेवल पे डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट यूजुअली डिज़ायरेबल इन मैनी एप्लीकेशंस। स्ट्रेंथ मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, कि एक चीज़ को लेट से बेंड करें और वो वापस ना आए अपनी ओरिजिनल शेप पे, दैट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, उस केस में कह सकते हैं चीज़ आउट ऑफ शेप हो गई है या मुड़ गई है, जिस तरह भी इस तरह की एप्लीकेशंस में वो स्ट्रेंथ को हम आमतौर पे कंसीडर करते हैं। लेकिन अब स्टिफनेस का मतलब ये है कि हम विद इन इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन एज इन के अगर चीज़ को थोड़ा सा कह सकते हैं डिफॉर्म भी करें, देन इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी विच डील्स विद दिस बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड स्टिफनेस।
तो स्टिफनेस की वैल्यू हम आगे मजीद भी देखेंगे, 5th से 6th चैप्टर है इसका। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे हम पर यूनिट वेट पे डिवाइड करें या डेंसिटी से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड स्टिफनेस टू वेट रेशियोज। तो इन जनरल कंपोजिट्स की टफनेस और फटीग भी बेहतर होती है। हमने इससे पहले ब्रिटल मटेरियल की बात की थी। ब्रिटल के अपोजिट क्या लें, मटेरियल जो होते हैं वो टफ मटेरियल्स होते हैं। टफ मटेरियल्स आमतौर पे कैटास्ट्रॉफिकली फेल नहीं होते या कैटास्ट्रॉफिकली ब्रेक नहीं होते, एकदम से नहीं टूटते, ठीक है। उससे पहले कुछ क्रैक आएगा, क्रैक आहिस्ता आहिस्ता प्रोपोगेट करेगा। इसमें इनिशियल या अर्ली वार्निंग्स भी आ जाती हैं कि पहले से कुछ मटेरियल पार्ट कोई भी मटेरियल अगर पहले से थोड़ा सा क्रैक हो गया है तो इससे अर्ली इंडिकेशन आ जाएगी कि ये फ्यूचर में फेल हो सकता है या ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये आमतौर पे शटर नहीं होता गिर के, जिस तरह कोई चीज़ टूट जाती है या जिस तरह ग्लास वगैरह जो है चीनी के या ग्लास के वो टूट जाते हैं। इसी तरह कंपोजिट बेस मटेरियल जो आमतौर पे इस तरह ब्रेक नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिट जो है जिस तरह कार बम्पर्स जो हैं वो जिसके अंदर फाइबर्स भी ऐड करते हैं, आमतौर प्लास्टिक के बने होते हैं कार बम्पर, इसके अंदर फाइबर्स ऐड करते हैं, दैट मेक्स इट अ कंपोजिट। तो इसमें यह है कि अगर सिर्फ प्लास्टिक के ही कार बम्पर बनाएंगे दे टेंड टू हैव लेसर स्ट्रेंथ, सो दैट्स नॉट फिजिबल। तो इसलिए हम उसमें फाइबर्स ऐड करते हैं। फाइबर ऐड करने से क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो हम इसे प्रैक्टिकली एज अ कार बम्पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो प्लास्टिक पार्ट जो है वो आमतौर पर बल्क प्रोवाइड करता है कि उसे पूरी मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज़ कवर्ड बाय द प्लास्टिक्स, ठीक है। जिसमें जो फाइबर ऐड करेंगे वो कार्बन फाइबर भी हो सकते हैं, वो ग्लास फाइबर भी हो सकते हैं, जो स्टैक बाई फाइबर हो। तो वो फाइबर जो स्ट्रेंथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इसमें बम्पर्स के अंदर, कार बम्पर्स के अंदर। उसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस मटेरियल की या इस कार बम्पर की बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। अगर सारा का सारा कार बम्पर जो है ये ग्लास फाइबर या कार्बन फाइबर का बनाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली होगा और टेक्नोलॉजिकली या प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्लास का सारा बम्पर बनाएंगे तो वो फिजिबल मतलब वो ब्रिटल होगा, वो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली उस प्लेस के ऊपर से यूज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जो इसके फाइबर्स हैं ग्लास के फाइबर्स दे टेंड टू हैव हाई स्ट्रेंथ एंड दे कैन बकल अ बिट एज वेल, सो उन्हें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आमतौर में मेरा ख्याल है इसमें कार्बन फाइबर्स ही यूज़ होते हैं, तो उससे कंपोजिट बनाते हैं और इसे कार बम्पर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे कंपोजिट मटेरियल्स कॉमनली डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने पहले भी ऐसे किया हुआ था, जस्ट एक रिवीजन के लिए। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इसमें इस कोर्स के अंदर कुछ असाइनमेंट्स भी लेंगे, ठीक है। वो आप LMS के ऊपर सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मिड टर्म भी इस कोर्स का तकरीबन 28 ऑफ दिस मंथ से पहले ही कुछ हो जाएगा, उम्मीद है 28 से इससे कुछ पहले इसका मिड टर्म भी होगा। तो मिड टर्म का कोर्स आपको पहले से शेयर भी कर दिया था, हम ओवर द टाइम इसमें साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे। और इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जूम के थ्रू हम इस लेक्चर को फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है। So this is all from my side for this particular lecture. Okay, Allah Hafiz.